सो आप अगर सपोज इफ यू वांट टू सी द टेबल स्ट्रक्चर, आपको अगर टेबल स्ट्रक्चर देखना है, सो व्हाट यू कैन डू इज लेट्स से the database which we have created is, let's say, April 2024, I think. Database, I think we have Hyderabad database, HH. Create table. Create database. April evening. Okay. So this is the database I've created. I can use this April evening. Okay. Now the database is in use. Okay. Suppose I want to create one table, which is execute. So select star from, okay. Select star from employee. So this is my table. Select it, execute it. You'll see this table structure. Okay. So, and there is another way to check the table structure. How can you check that? sp_help. Don't worry about what is this command. Okay. This is called a stored procedure. So we'll discuss what a stored procedure is, but just remember it. By using this command, you can see the table definition. If you want to check the table definition, you can check the table definition. कैसे? sp_help space दे दो, एम्प्लॉय लिखो, सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो. नाउ यू विल बी एबल टू सी ऑल दी कॉलम्स. देखो, सी, employee table has got 4 columns, correct? So now you can clearly see what are the data types for each column. So integer, varchar money. Okay. So this is okay. This is the varchar length 100. This one takes 4 bytes of space. This one takes 8 bytes of space. Okay. In the memory. Okay. 4 bytes of space, 8 bytes of space in the memory. 19,4 is, I'll tell you, 19,4 means this is called precision. This one is called scale. मतलब आप अगर एक suppose, okay, प्रिसीजन स्केल मतलब क्या है कि सपोज आपने डेसिमल लिया, आप लोगों ने डेसिमल यूज किया, लेट्स से डेसिमल 10,2. 10,2 मीन्स आपका जो नंबर है इट शुड बी 10 डिजिट्स. ओके. आप सपोज आप नंबर से एक अमाउंट आप स्टोर करना चाहते हो या इंसर्ट करना चाहते हो इन टोटल. सो बिफोर डॉट, आफ्टर डॉट, डेसिमल प्लेस, ये सब मिला के ना यू शुड हैव 10 डिजिट्स. सो मतलब आपने डेसिमल, सपोज आपने लिया है सैलरी, सैलरी आपने लिया है डेसिमल 10,2. 10 को बोलते हैं प्रिसीजन, 2 को बोलते हैं स्केल. दैट मीन्स योर टोटल नंबर ऑफ डिजिट शुड बी 10 इंक्लूडिंग आफ्टर और बिफोर डॉट. अगर सी इसमें ना मैं कौन सा नंबर सेव कर रख सकता हूँ, लेट्स से 63259678.25. तो मतलब ये हो गया 2 डिजिट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गया 10. डेसिमल प्लेसेस में आप 2 डिजिट रख रहे हो. बट आप अगर ऐसे रखोगे ये नंबर, इफ यू ट्राई टू सेव दिस नंबर इट विल थ्रो यू एन एरर, बिकॉज आपने ये डेसिमल प्लेसेस में 2 डिजिट रखा है, यहाँ पे 10, सो टोटल हो गया 12. ओके. दिस विल थ्रो यू एन एरर. Okay. Or either it will throw you an error or it will not correctly save this number, or it will not correctly store this number. So you should always keep in mind that if you are taking 10,2, your total number of digits should be 10, but डेसिमल प्लेसेस में 2 आप रखोगे. अगर यहाँ पे 3 रखा तो लेफ्ट साइड में 7 डिजिट रखो, डॉट के बाद, सॉरी, लेफ्ट साइड में 7 रखो, डॉट बिफोर, डॉट आफ्टर में 3 डिजिट रखो. अंडरस्टूड? डेसिमल, व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज स्केल? क्लियर? Yes. ओके. नहीं तो आप मनी भी यूज कर सकते हो. ओके. सो मनी का जो डेफिनेशन यू कैन सी हियर. सो मनी में इफ यू सी हियर,
That is what it is saying. मनी क्या करता है? 8 bytes of space in the memory. 8 bytes of space in the memory. Integer 4 bytes of space. ओके, लास्ट टाइम मैं दिखा रहा था, राइट? आई थिंक आप लोगों को नहीं दिखा, सॉरी. सो 4 bytes ऑफ स्पेस इन द मेमोरी. ओके. ई नेम, दिस वन. ई नेम का वैरकार को जो लेंथ है 100 कैरेक्टर्स, राइट? गॉट इट? टेबल ऐसे ही बनाया था, राइट? दिस इज द टेबल, राइट? Yes, sir. यू कैन सी द डेफिनेशन ओवर हियर. आपको अगर टेबल के बारे में पता करना है, टेबल का डेफिनेशन देखना है, how many columns this table has and what type of data it takes. So you have to use sp underscore help, then the table name. It will show you the complete description about the table. If you want to see this table description, then you have to use this command and the table name. Command space table name, sp underscore help space table name. It will show you everything. What type of data. Each and every column will hold what type of data and their length and everything. Got it? सो मनी में आप कितना वैल्यू सेव कर सकते हो? इतना बड़ा वैल्यू सेव कर सकते हो. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 19 और राइट साइड में 4 डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू रख सकते हो. तो मतलब डॉट से पहले 15 डिजिट रख सकते हो, डॉट के बाद 4 डिजिट रख सकते हो. 19 इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग आफ्टर डॉट, आफ्टर एंड बिफोर डॉट. क्लियर? सर गोटे सिली क्वेश्चन. हम्म. सर मनी रे स्केल कहीं चारिटा देला दीटा देइथिले माने धन्यंतु 100 पैसा माने आफ्टर डॉट तो हाँ. सेटा तार प्रिसिशन वैल्यू पुन नेक्स्ट चेंज कर देई न थांदा दीटा देइथांते 99 देइथांता 2 No, डिजिट no. नेक्स्ट I mean, डिजिट ऐड. this is something which SQL has defined. ओके. एसक्यूएल में एसक्यूएल हैज डिफाइंड कि इतना मैक्सिमम आप ले सकते हो. ओके. दैट इज व्हाट दे हैव डिफाइंड. सो दिस इज, सी इफ आई एम टेकिंग इंटीजर, सो इंटीजर का एक साइज है, आप लोगों को बताता हूँ मैं अभी. ये डिस्कस किया था या नहीं? नहीं, राइट? इंटीजर डेटा टाइप. चलो सीधा माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाते हैं. ओके. गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके. सो देखो, इसका मतलब क्या है? अभी अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा डेटा है. सपोज आप सोचो, आप किसी का एज स्टोर करना चाहते हो. सो अभी बाय डिफॉल्ट यू विल टेक इंटीजर. आपको इंटीजर ही पता है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. ओके. आपको इंटीजर पता है, तो एज आपको पता है कि एज नंबर में रहेगा. एज 1 से स्टार्ट होके सो मैक्सिमम कितना तक जाएगा? एक का एज 150 साल जिएगा एक बंदा मैक्सिमम, या 120. करेक्ट? जी. ओके. सो इंटीजर आप देखो, इंटीजर जो डेटा टाइप है, अभी तक आपको पता नहीं था, अभी पता चल रहा है. इंटीजर जो डेटा टाइप है, कितना बड़ा नंबर ये सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है. तो यहाँ पे इंटीजर से जो छोटा डेटा टाइप है, जो इंटीजर बेसिकली हो, जो डेटा टाइप है इंटीजर या न्यूमेरिक फैमिली में आपको 4 टाइप का डेटा टाइप मिलेगा. एक है टाइनी इंट, एक है स्मॉल इंट, एक है इंटीजर, एक है बिग इंट. तो इनका सब रेंज है. टाइनी इंट में आप 0 से लेके 255 तक स्टोर कर सकते हो. इन स्मॉल इंट यू कैन स्टोर फ्रॉम -32,768 से लेके +32,767. ये देखो 214 करोड़ 74,83,648 214 करोड़, इतना तक नंबर सेव कर सकते हो. अभी आप मुझे बताओ, मुझे अगर किसी बंदे का एज सेव करना है या एज को मेंटेन करना है, तो विच डेटा टाइप शुड आई टेक? Tiny end. एंड टाइम इंट, राइट? तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप जैसे लास्ट टाइम भी वही बोल रहा था कि आपको अगर चाय पीना है, तो आप किस में पियोगे? कप में पियोगे कि मग में पियोगे? Cup.
कप में Okay. पियोगे, राइट? मग में भी पी सकते हो, बट यू विल नॉट यूज इट बिकॉज इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस और इतना कन्वीनियंट भी नहीं है। सो एग्जैक्टली ये वैसे ही है। पानी ग्लास में भी पी सकते हो, बकेट में भी पी सकते हो, लेकिन अब ग्लास में पियोगे। तो इसीलिए आपका डेटा अगर आपको पता है कि आई विल नेवर एवर एक्सीड दिस नंबर, तो मुझे फिर बड़ा डेटा टाइप क्यों यूज करना है? तो बड़ा डेटा टाइप यूज कर सकते हो जब आप, व्हेन यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ डेटा, आप बड़ा डेटा टाइप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जो काम आपका 1 बाइट में हो जाएगा, मेमोरी में 1 बाइट लेगा, ये 4 गुना ज्यादा ले रहा है, 4 बाइट्स। तो आपको आप अभी 150 रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अगर ये यूज करते हो। बट अगर 1 लाख या 10 लाख स्टूडेंट का डेटा आप मेंटेन करते हो, और 10 लाख स्टूडेंट का एज आप स्टोर करोगे, तो इंस्टेड ऑफ टाइनी इंट यू हैव टेकन इंटीजर, तो दैट मीन्स 10 लाख इंटू 3 बाइट्स ऑफ स्पेस। ओके, सो मे बी 30 लाख बाइट्स ऑफ स्पेस आप अननेसेसरीली डेटाबेस में ये करो, भर रहे हो। सो यू शुड, बाय लुकिंग एट योर डेटा, यू शुड डिसाइड कि मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। सपोज एक छोटा सा कंपनी है, लेट्स से एक छोटा सा कंपनी है, लेट्स से रुचि, रुचि करके जो कंपनी है। ओके, सो रुचि कंपनी में इस कंपनी ने सोचा कि मैक्सिमम इन लाइफ टाइम मैं इतना एम्प्लॉय रख सकता हूँ, मैं 10-20 हज़ार से एम्प्लॉय ज़्यादा हायर नहीं करूंगा। तो दे हैव टू गो फॉर एम्प्लॉय आईडी, उनको अगर जनरेट करना रहेगा, दे हैव टू गो फॉर स्मॉल इंट। वाई टू गो फॉर बिग इंट और बिग इंट? आपको अगर मोबाइल नंबर सेव करना है, सो मोबाइल नंबर आपको पता है कि मोबाइल नंबर आज के टाइम पे 6 से चालू होता है, 6314521349। सो मोबाइल नंबर ऐसे ही होगा। तो मोबाइल नंबर अगर ऐसे ही होगा, कैन यू स्टोर योर मोबाइल नंबर इन इंटीजर? ये देखो, ये 10 डिजिट्स। No. आप मोबाइल नंबर, ये इंटीजर आप अगर डेटा टाइप लोगे कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करने के लिए, कैन यू स्टोर? आप देखो ये नंबर, No. ये 214 करोड़ है, दैट मीन्स 214 करोड़ 74 लाख 83,647। ओके, ये नंबर से आपने अगर एक भी ऐड कर दिया, अगर आपके पास एक नंबर आया 214 74 83 648, तो फिर ये डेटा टाइप उसको रख नहीं पाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा बिग एंड के पास, या ये डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा टाइप। और आप जो मनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके लिए जैसे ऑलरेडी मतलब साइज स्पेसिफाई किया हुआ है, मनी का भी ऑलरेडी साइज स्पेसिफाई किया हुआ है मेमोरी में। आप अगर यहाँ पे देखोगे, सो मेमोरी में स्पेस इतना ही लेगा। ओके, मेमोरी में स्पेस 8 बाइट्स स्पेस लेगा, 8 बाइट्स। बट 8 बाइट्स ले रहा है, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। टोटल है 19 डिजिट्स, लेफ्ट साइड में आपका 15 डिजिट रहेगा, डॉट के बाद चार चार डिजिट रहेगा। तो आपको ऐसे पता चल रहा होगा कि नहीं यार, चार डेसिमल प्लेस में कौन देखता है 4 डिजिट? लेकिन देखते हैं जहाँ पे करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, जैसे आई वाज वर्किंग फॉर यूबीएस। ओके, सो देयर 4 डेसिमल प्लेस के बाद अगर डेसिमल वैल्यूज आ रहा है, देन वी इग्नोर दैट। बट 4 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है तो वी डोंट इग्नोर। मतलब जैसे एक नंबर है 1 2 3 4.1 2 3 4 5 6, तो ठीक है, ये आप इतना बड़ा डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बट अगर डिफरेंस अगर इसमें आ रहा है, 4 डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंस आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 पैसा का भी डिफरेंस होता है तो मैटर करता है, बिकॉज एक एक पैसा होके अगर एक एक दिन में हजारों लोग मतलब करोड़ों लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो करोड़ों 1 करोड़ पैसा हो गया ना, ये वैसे ही है। सो बैंकिंग सिस्टम के लिए ये डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1 तो अगर 4 डेसिमल प्लेसेस में एक डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इसीलिए इसने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट मनी डेटा टाइप है, मतलब इतना, मतलब इसमें ना ये डेटा टाइप में आप 19 स्केल में 19 विच इज लेफ्ट साइड में 15 डिजिट, राइट साइड में 4 डिजिट। सो when I say decimal, when I say decimal of 2, guys please go on mute. ओके, डेसिमल में 4,2 में लिख रहा हूँ, तो मतलब मेरा जो नंबर है टोटल 4 डिजिट का होना चाहिए। अगर जैसे 75 रुपीज 25 पैसा, ये नंबर एकदम फिट बैठ जाएगा, बिकॉज ये नंबर का टोटल डिजिट देखोगे तो 1 2 3 4 है, डॉट के बाद 2 प्लेसेस है, डॉट से पहले 2 प्लेसेस। ओके, सो क्लियर? Yes. Yes. ओके, एग्जीक्यूट। ओके,
So now this table is created. Let me insert few records. Okay. Okay, 2 records have been inserted. Okay. मुझे सपोज एक काम करना है, देखो ये एक तरीका है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए. देर इज अनदर वे टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, वेयर व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसे कर सकते हो, इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज. ये जहाँ पे आप टेबल का नाम लिख रहे हो ना, यहाँ पे स्पेसिफाई करो. सपोज मैं स्पेसिफाई करता हूँ एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, एम्प्लॉय नेम, कॉमा, एम्प्लॉय एड्रेस, comma, employee salary. Okay. Now I have these 4 columns. Insert into employee, employee ID, employee name, and so I have specified all the columns over here. Okay. So जो column मैंने specify किया value उसी column के लिए ही मैं insert करूँगा. Let's say देखो यहाँ पे मैंने employee ID specify किया, name specify किया, address specify किया, salary specify किया. Let's say here I'll write 107. Okay. Let's say Abhipsa 75,000 salary. Okay, I want to record one more. I want to insert one more record. So where I'll write 108. Okay, that's it. Okay, this is what this. I mean these 2 records I want to insert. So select करो, execute करो. Okay, 2 more records inserted. तो अब देखो अभी select star from employee. You can see 4 records. Clear? Got it? So one question, in the second method where you explained, can we alter the sequence of columns? Yes, we can do that. अगर आपको इस sequence मतलब यहाँ पे alter करना है sequence, that also can be done. Let's say first I want to insert e-salary, then suppose e-name, e-address, then e-id. जो सीक्वेंस में आप स्पेसिफाई कर रहे हो सेम सीक्वेंस में आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. लेट्स से फर्स्ट थिंग इज योर, ठीक है, पहले आप सैलरी पास कर दो, उसके बाद क्या पास करना है अपने को, नेम, नेम इज लेट्स से शुभदीप. ओके, उसके बाद देन एड्रेस, लेट्स से चेन्नई, एंड इट्स 109. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज सिंस यू हैव चेंज्ड the sequence or altered the sequence, in the same sequence you are providing the value. आप e salary पहले पास कर रहे हो, then e name पास कर रहे हो, e address पास कर रहे हो, e id पास कर रहे हो. Okay, so select it, execute it. So one more record is inserted. You can see the record. Okay, so one more thing is suppose let's say you do not know the address of okay, Anil. Suppose you do not, Anil is joining XYZ company, so that XYZ company doesn't have the address of current address, I mean the residence address of Anil. So what we can do is we can insert the record like this. Okay, अभी अपने पास एड्रेस नहीं है अनिल का, ठीक है. So let's say let me follow this one. एड्रेस को रिमूव कर दो यहाँ से बिकॉज एड्रेस अभी अपने पास नहीं है. सो व्हाट वी हैव हियर इज Anil, comma, the salary of Anil is let's say 81,000. Okay, now the salary of Anil is this, and this is employee ID. Employee ID we have passed. E-name हमने लिखा. I mean the e-name we have passed Anil. E-salary is 81,000. Let me just execute it.
तो आप अभी देखो। ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर इज कॉल्ड नल। सो नल क्यों आया? जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो कोई स्पेसिफिक कॉलम के लिए, सपोज आपने ये एम्प्लॉय आईडी दिया, ई नेम दिया, ई सैलरी दिया, बट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी वैल्यू फॉर ई एड्रेस कॉलम। सो इन दैट केस व्हाट एसक्यूएल इज गोइंग टू डू इज, एसक्यूएल सर्वर वहां पे नल करके एक वैल्यू डाल देगा। सो नल मीन्स, null means, null is, null is a missing value, null is a missing value और unknown, unknown भी बोल सकते हो, ठीक है। null means it is missing or unknown, okay। so null is neither a space, इसको आप space मत समझना, ये neither a space ना जीरो है, nor a zero, ओके। null ना तो space है ना तो ये जीरो है, ओके। null can't be compared with anything, null can't be compared with anything, okay। null को आप किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। null is a missing value और unknown value, null is neither space nor a zero, और null can't be compared with anything। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं a equals to a, और 1 equals to 1, 2 equals to 2, 2 और 1 नॉट इक्वल्स टू 2, ऐसा कंपेयर करते हो ना। तो वैसे नल को नल के साथ भी कंपेयर कर नहीं सकते। नल कांट बी कंपेयर्ड विथ एक्सेप्ट, नल को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। नल ना तो जीरो है ना तो स्पेस है। नल को ऐसा बोलते हैं कि इट्स ए मिसिंग वैल्यू और अननोन, मिसिंग और अननोन वैल्यू। आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, सो एसक्यूएल स्मार्टली यहाँ पे नल डाल दिया। नल मीन्स जैसे हम लोग नॉट नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं ना कहीं कहीं पे, मैरिज, अभी मैरिटल स्टेटस में कभी कभार अच्छा नॉट एप्लीकेबल किसी के लिए, और लेट्स से किड्स, इफ द मैरिटल स्टेटस इज अनमैरिड सो किड्स नॉट एप्लीकेबल, ओके। सो वैसे हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे ये एसक्यूएल में अगर कोई डेटा मिसिंग है, कोई लेट्स से किसका सैलरी मिसिंग है, इसका एम्प्लॉय आईडी मिसिंग है, वी पुट देयर नल, ओके। सो सर एटा ऑटोमेटिक नल नहीं जीवनी जदि हमें मेंशन न करबा डेटा। हाँ, इट इज हियर, इट हैज टेकन ऑटोमेटिकली, हां ओके। मींस आपण एम्प्लॉय रू एम्प्लॉय एड्रेस टा हटे देले, सेटा न हटे कि हमें मेंशन करबा एम्प्लॉय एड्रेस एपटे डेटा दबानी वैल्यूज रे, तो सेटा एरर फेच करबो ना नल दबो ऑटोमेटिक। We'll see that directly. We'll see that directly. चलो, okay. Let's try to execute this. There are ना more. एरर फेच करबो। Okay. There are more columns in the insert statement than values specified in the values. अच्छा अपने value column में you have specified 4 columns. The Okay. value which you have provided is only 3. Okay. So you'll get an error. बट नल को आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नल भी इंसर्ट कर सकते हैं, जानबूझ के इंसर्ट भी कर सकते हैं। That's I want to insert like this. I'll simply write any value, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। Let's say I'm changing it to 108. Let's say Rahul 93,000 नल। देखो अगर आप देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, एग्जीक्यूट और एक रिकॉर्ड में करूंगा और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। Let's say 110 110 सुनील 75,000, यहाँ मैं लिखूंगा okay. So can you guys tell me what is the difference between these two? एटा Below one is within a color string, One after one, yes, quote ভিতরে जोटा सेटा string टा। yes. Quote, if you are writing anything within quotes, it has become a text value, string value. So null means this null is a missing or unknown value, and this one is a string value. ये एक value हो गया. It is no more a null value.
सो एनीथिंग आप अगर किसी को भी सिंगल कोट में एनक्लोज कर देते हो, दिस हैज बिकम अ टेक्स्ट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता है वो। बट ये कोई मतलब टेक्स्ट वैल्यू, ये हो गया टेक्स्ट वैल्यू, बट इट इज नॉट अ टेक्स्ट वैल्यू और इट इज नॉट जीरो और ब्लैंक और एनीथिंग, it is just missing value. Okay, so let me just you will see the difference. Cannot convert char into money. अरे यार money, अच्छा address we have to, column. okay, we have to put it over here, sequence, got it, सीक्वेंस चेंज कर दिया हमने, ठीक है। ईआईडी की जगह ये हमने ये पास किया सुनील, उसके बाद ई एड्रेस नल एंड ई सैलरी 75,000। जब ई सैलरी के जगह मैंने नल पास किया, ई सैलरी इज ए न्यूमेरिक फील्ड। ओके, लास्ट टाइम यू गॉट द एरर राइट, देखो वन सेकेंड आई शो यू। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज ये ई आई डी 110, ई नेम सुनील, ई एड्रेस, ओके, ई एड्रेस इज 75,000। उसके बाद ई सैलरी मैंने दिया नल। तो मैंने जब एग्जीक्यूट किया, हाँ, कैनॉट कन्वर्ट कैर वैल्यू टू मनी। कैरेक्टर को कैसे मनी में कन्वर्ट करेगा? मनी तो न्यूमेरिक वैल्यू है राइट, अंडरस्टूड, यस सर। न्यूमेरिक वैल्यू, सो इट इज अनएबल टू कन्वर्ट। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स, अंडरस्टूड। सो नल वैल्यू देखो कैसे दिखता है। सो दिस इज नंबर नल वैल्यू, दिस इज अ टेक्स्ट वैल्यू, गॉट इट। Yes, sir. Okay. So null value, is it clear to everyone? Null value and how to insert the data by specifying column list. कॉलम Yes. स्पेसिफाई करके कैसे इसमें आप ऑल्टर, मतलब ये जो सीक्वेंस है ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हो। पहले ये आईडी पास कर दो, नहीं तो ई सेल पास कर दो, पहले ये एड्रेस पास कर दो, बट उसी हिसाब से आपको वैल्यू यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू जो आप पास कर रहे हो ना, इट शुड एग्जैक्टली मैच विद द कॉलम नेम का सीक्वेंस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से वी हैव दिस टेबल। ओके, मुझे क्या करना है, एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करना है। कभी कभार क्या होता है ना, अपने को कुछ मुझे सपोज मुझे कुछ बोला गया है कि सबका सैलरी में जो लोग बीबीएसआर में काम कर रहे हैं या मुंबई में काम कर रहे हैं उनको 15% इंक्रीमेंट देना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट विच आई गॉट। तो मुझे वो कल फिर क्वेरी लिखना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी लिखना पड़ेगा। ओके, सो उसी हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा क्वेरी को, अपडेट क्वेरी लिखना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज, सी द प्रॉब्लम इज, मैं क्या सोच रहा हूँ कि दिस इज माई ओरिजिनल टेबल। इन दिस ओरिजिनल टेबल आई हैव मिलियंस ऑफ डेटा। मैं अगर कुछ गलती कर दिया तो फिर सब डेटा जाएगा, सब अपडेट हो जाएगा। कुछ एक बड़ा सा रिक्वायरमेंट है, मुझे वो इधर ये चेंज करना है, उधर वो चेंज करना है, मुझे 5 चीज़ बोला गया है, बट मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सो वॉट आई विल डू इज, मैं ओरिजिनल टेबल में डायरेक्टली काम नहीं करूंगा, मैं एक डुप्लीकेट टेबल बनाऊंगा। ओके, डुप्लीकेट टेबल बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, वो डुप्लीकेट टेबल में काम करके समझूंगा कि ठीक से ये चल रहा है कि नहीं, ठीक से अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर वहां पे चल गया, जो अप्रोच मैंने जो कमांड लिखा मैंने वहां पे चल गया, तो फिर ओरिजिनल टेबल में चेंज करूंगा। सपोज आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, आपको एक ही फॉर्म मिला है, बट आप सोच रहे हो कि एक फॉर्म में मैं एक बार फॉर्म फिल कर दूंगा। अगर कुछ गलतियां कर दिया, कभी कभार हम लोग लिखा होता है नेम इन कैपिटल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स हमने छोटा लेटर में लिख देते हैं, फिर अपने को और एक फॉर्म चाहिए होगा, राइट? यस और नो? कुछ हमने गलती कर दिया तो वी नीड वन मोर फॉर्म। तो आप क्या करते हो, एक फॉर्म का जीरोक्स निकाल लेते हो, ठीक है, कॉपी निकाल लेते हो, 5-6 कॉपी निकाल लेते हो, 2-3 कॉपी निकाल लेते हो, एक दो में रफ करके देखते हो, लिख के देखते हो, फिर लास्ट फाइनल कॉपी में आप अच्छे से बना रही करते हो। बट ओरिजिनल इसमें ना एक ही फॉर्म होगा, तो फिर आप उसमें ज़्यादा R&D नहीं करते हो, केयरफुली करते हो। नहीं तो अगर चांस है तो एक दो कॉपी बना लेते हो, कॉपी में ट्राई करते हो, फिर ओरिजिनल में बाद में ये करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही है। अगर सपोज यू हैव ए लार्ज टेबल और बहुत बड़ा टेबल है, रिक्वायरमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको बोला गया कि इसको इंक्रीमेंट देना है, उसको ये करना है, जो जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करे उसको अलग अलग इंक्रीमेंट देना है। सो आपको नए टेबल जो ओरिजिनल टेबल में रिसर्च, आई मीन यू डोंट वांट टू डू R&D उसमें, ठीक है, उसमें आपको R&D नहीं करना है। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे एक डुप्लीकेट टेबल में पहले बना लेता हूँ, उसमें करके देखता हूँ, अगर चल गया तो फिर सही चला तो फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा ओरिजिनल टेबल में। सो देयर यू नीड अ डुप्लीकेट टेबल और ए बैकअप टेबल। ओके,
सो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, अपने यूज के लिए बैकअप टेबल क्रिएट कर लेते हैं और वो बोलेंगे बैकअप टेबल में जो छेड़छाड़ करना है करो, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ए ओरिजिनल टेबल। बैकअप टेबल में कुछ भी करना है आपको करो। सो बैकअप टेबल बनाने के लिए बैकअप टेबल को हम लोग कोई को बोलता है कि हम इसको डुप्लीकेट टेबल बोल सकते हैं, क्लोन टेबल बोल सकते हैं, या बैकअप टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट टेबल, क्लोन टेबल, बैकअप टेबल। So if you want to create, a backup table, okay, if you want to create a backup table or clone table, so command is select star into, okay, select star into backup table, कोई भी नाम दे दो। let's say मैं नाम देता हूँ न्यू EMP करके, मैंने टेबल का नाम दिया न्यू EMP, ओके। बट आप अभी देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू अंडरस्कोर EMP, आप ये देखो, रन करो, न्यू EMP अभी है क्या? अभी न्यू ये टेबल है, न्यू एम्प्लॉय टेबल है? नहीं। नहीं है, राइट। सो आप मुझे क्या करना है, न्यू EMP टेबल क्रिएट करना है। सो आई विल राइट सिलेक्ट स्टार इनटू न्यू EMP फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कॉपी करो। मतलब अभी जो एम्प्लॉय टेबल में जितने जो डेटा है आपके पास एम्प्लॉय टेबल में, लेट्स से यू हैव 8 रिकॉर्ड्स, ओके। जो 8 रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड को आप ये रिकॉर्ड को लेके और एक टेबल में डाल दोगे। एक तो फर्स्ट स्टेप इज यू वांट टू क्रिएट, ओके। ये कमांड कैसे काम करेगा? इट विल फर्स्ट ओके क्रिएट, ओके, न्यू अंडरस्कोर EMP टेबल। ये टेबल क्रिएट करेगा पहले, न्यू अंडरस्कोर EMP। अभी तो आप लोगों ने देखा कि ये टेबल अभी है नहीं डेटाबेस में, तो ये फर्स्ट क्या करेगा, ये टेबल क्रिएट करेगा। और कैसे करेगा टेबल क्रिएट? एग्जैक्टली ये टेबल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो स्ट्रक्चर को लेके एक फ्रेश न्यू टेबल क्रिएट करेगा। उसके बाद इधर से डेटा कॉपी करके लेके इधर डाल देगा। सो आप अगर समझोगे, आप इसको ट्रांसलेट करो अपने लैंग्वेज में, उड़िया हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करो। सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, राइट? Star means all columns, all the columns, okay? Star means all the columns. So what, okay, so what you are trying to do here is select star into new employee. न्यू एम्प्लॉय टेबल में सब कुछ डाल दो, कहां से लेके, फ्रॉम इधर से एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ डेटा लेके इधर डाल दो। कैसे? फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट न्यू EMP। पहले ये टेबल तो है नहीं, आप क्रिएट करो, उसके बाद डेटा सब इधर से कॉपी करके लेके इधर डाल दो। सो basically copy everything from here and put it over here, okay? So first it will create the new table। ये टेबल क्रिएट करेगा by copying the structure from this table। एम्प्लॉय टेबल का जो स्ट्रक्चर, हम अपना जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम यहाँ से कॉपी करके टेबल क्रिएट करेगा। उसके बाद डेटा, ये सारे के सारे डेटा लेके इधर डाल देगा, ओके। सो चलो ये अभी रन करके देखते हैं, सो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये टेबल करके कुछ है नहीं अभी, ओके। बट ये आप रन करो, सिलेक्ट स्टार इनटू न्यू EMP फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ लग 8 रोज अफेक्टेड, दैट मीन्स 8 रोज इंसर्टेड। चलो, ये टेबल में था नहीं कुछ, अभी मैं रन करता हूँ, क्रिएट हो गया ये टेबल, ओके, क्लियर? और Yes. एनी डाउट्स गाइस? देखो, फर्स्ट थिंग इज, अभी मैं, अगर आप मुझे बताओ अगर ये कमांड में सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट? हाँ सर, सेटा डुप्लीकेट है कि हेलो? न्यू EMP ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया यस अकाउंट। यस डुप्लीकेट चांस नहीं, ओके। बिकॉज सी, the first task of this command is to create a new table, okay, which is new underscore EMP. So when it will try to create this table, it will find that this table is already existing. It will throw you an error, okay? This time it is already created. When we executed this command, new employee table is already created, okay? So now
if you try to run this once again, there is already an object named new EMP that is exist. This table is already existing. Now this command, this command will first create the table, then it will copy everything from employee table and put it over here. Okay, next time if you try to run it, it will throw you an error saying there is already an object named new employee which is already existing. Clear? Or any doubts? सर हेलो Yes. सर एठी जो आपण जो कहले गोटे टेबल कॉपी करबो आउट टेबल को सेटा हमको शो करबो ने सपोज लेफ्ट साइड रे गोटे टेबल दा रहला प्राइमरी तार No, no. आउट डुप्लीकेट रहला राइट साइड रे That will happen internally. You do it will not show you. Okay. हां Internally, ठीक है सर this is how this command works. Okay. आज्ञा Okay. So clear everyone? Or any questions? Okay. This is an interview question. Okay. So you will get how to create a duplicate table, or some interviewer might ask you how to create a clone table, how to create a backup table, or people will ask how to create a new table from an existing table. Okay. How to create a new table from an existing table. Okay. You already have a table, you want to create a backup table or a new table from the existing table. वहां से exact structure लेके create कैसे करना है. Okay. Okay. So सर ये 3 स्टेटमेंट का मतलब एक ही है ना? डुप्लीकेट, क्लोन एंड बैकअप. ठीक है. There's no difference. So we'll learn a little bit about where clause. What is where? So where क्यों यूज है? एक where clause जैसे ये सब अब ये जैसे सब keywords है ना, select हो गया, into हो गया, from हो गया, okay, create, insert, into. Last time मैंने बताया था, right? These are called keywords or reserve words, right? Where clause or where clause भी बोलते हैं, where clause or where keyword is used to filter the records based on a specific criteria or condition. Okay. Okay. Where clause क्यों use होता है? Where clause is used to filter the record based on specific criteria or condition. आपको अगर कोई टेबल पे आपको कुछ फिल्टर लगाना है, ओके, तो आप यूज करते हो वेयर कंडीशन. सपोज मुझे देखना है, आई वांट टू लिस्ट ऑल द एम्प्लॉइज फ्रॉम भुवनेश्वर. Okay, BBSR list all the employees from Bhubaneswar. So now this table has got, this table has employees from all the cities. Okay, all the cities of India. Let's say there are like people are working from 20-30 cities, but I want to focus only on, I want to check only people who are working. Okay, people who are working from Bhubaneswar location. Okay, so now where clause लगा के हम लोग ये काम कर सकते हैं. कैसे? तो मैं लिखूंगा select star from employee. Okay, select star from employee. यहाँ पे लिखो where, जहाँ पे e address equals to, okay, where e address equals to सिंगल कोट में BBSR. मैंने बोला ना, ये टेक्स्ट वैल्यू है, इसको आप इंसर्ट करते वक्त भी सिंगल कोट यूज करना है आपको. देन जब आप क्वेरी भी कर रहे हो, कमांड भी लिख रहे हो, सर्च भी कर रहे हो और फिल्टर भी अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू एनक्लोज ऑलवेज इट इन सिंगल कोट्स. आपके पास अगर डेट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, टाइम वैल्यू है, इट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो. सो इट हैज लिस्टेड ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम भुवनेश्वर. करेक्ट?
Yes or no? Clear? Yes, sir. So where E address equals to Bhubaneswar. That's it. So आप ऐसा भी लिख सकते हो, let's say okay, list all the employees if their salary is more than 50K. So first you have to break this command. जैसे कि list all the employees from Bhubaneswar. So how many conditions we have? We have only one condition where we'll be checking whether the address is Bhubaneswar or not. Here we have also one condition. Here we'll check if the salary is greater than 50,000. So how to write it? अब सीधा लिखो select star from EMP where E cell greater than, करेक्ट, ठीक है, ग्रेटर देन ऐसे लिखता है, select star from employee where E cell greater than this, execute करो. So now is it showing all the salaries, all the employee salaries who are more than who's getting more than 50,000 salary? Table में बहुत सारा records था, right? If you look at the original table, you can see the table has 8 records. Now after you use this, you can see only 5 records, right? यहाँ पे 5 रिकॉर्ड ही दिख रहे हैं, राइट? आप जस्ट टू डबल चेक, आपको अगर कंपेयर करना है सही डेटा फेच होके आ रहा है कि नहीं, तो आप ओरिजिनल टेबल यहाँ पे लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000. आप दोनों डेटा देखो, आपको समझ में आ जाएगा whether the second command is fetching the correct data or not. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा, like it has 8 records. The second output which we have got is 5 records. Now if you look at each and every salary, it is greater than 50,000. Got it? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now suppose यहाँ पे भी जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, लेट्स से सिलेक्ट स्टार इनटू वाला, ये हम लोग रन करके देखेंगे. सो मुझे बोला गया है कि चलो आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, बट अपने को अभी जो नेक्स्ट काम है भुवनेश्वर एम्प्लॉय के लिए काम करना है, मतलब पीपल हु आर इन भुवनेश्वर, उनका सैलरी रिस्ट्रक्चर होगा, उनका डेजिग्नेशन रिस्ट्रक्चर होगा, तो उनका डेटा को और एक न्यू टेबल क्रिएट करो और डेटा लेके आओ, भुवनेश्वर एम्प्लॉय का ही डेटा लेके आओ. ओके, सो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक न्यू टेबल का नाम मैं दे दूंगा EMP BBS. ठीक है, आई कैन गिव एनी नेम, राइट? यस और नो? Yes, sir. बट मुझे ये ओरिजिनल टेबल से खाली भुवनेश्वर टेबल का भुवनेश्वर एम्प्लॉयज का डेटा लेके जाना है. भुवनेश्वर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये जो टेबल है, मुझे भुवनेश्वर एम्प्लॉय का डेटा, मतलब बेसिकली इतना डेटा को लेके एक टेबल क्रिएट करना है. ठीक है, इतना डेटा को लेके एक टेबल क्रिएट करना है, एक न्यू टेबल क्रिएट करना है, बट आई वांट टू कॉपी ओनली दिस मच डेटा. इसको लेके एक टेबल क्रिएट करना है, करेक्ट? सो मैं क्या करूँगा, आप लोग बताओ. अगर मैं सिलेक्ट स्टार इनटू EMP BBSR फ्रॉम एम्प्लॉय करूंगा, तो EMP BBSR करके न्यू टेबल तो क्रिएट हो जाएगा, बट बाय कॉपिंग ऑल 8 रिकॉर्ड्स. बट मुझे इतना ही करना है, 8 तीनों रिकॉर्ड को लेके जाना है, तो क्या करूं मैं? where Where ER condition? where condition, हाँ. Yes, you have to write where, okay, EADD equals to BBSR. Okay, where E address equals to BBSR. Just select it, execute it. देखो लास्ट टाइम आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, लास्ट टाइम एवरी टाइम यू यूज टू सी 8 रोज अफेक्टेड, राइट? जब न्यू टेबल क्रिएट होता था 8 रोज अफेक्टेड आता था, बट अभी इट इज शोइंग 3 रोज अफेक्टेड बिकॉज भुवनेश्वर से 3 लोग ही हैं. ठीक है, सो आप देखो, टेबल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. सो जो टेबल क्रिएट हुआ है, विच इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP BBSR. ओके, ये जो न्यू टेबल क्रिएट हुआ है, इट हैज गॉट ओनली 3 रिकॉर्ड्स. वी हैव, बिकॉज while creating a table
while we try to create the table and copy the data, we ensured कि अपने पास BBSR का डेटा ही आए, टेबल क्रिएट हो जाएगा, BBSR का डेटा ही आए. Yes, clear? Yes, sir. Okay. So then, okay. So इसके साथ साथ और एक चीज सीखेंगे. सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ना खाली टेबल क्रिएट करना है, डेटा कॉपी नहीं करना है. ओके, मुझे खाली टेबल, ये टेबल स्ट्रक्चर से टेबल स्ट्रक्चर बनाना है. मैं डेटा और कोई टेबल से लेके आऊंगा, डेटा और किधर से लेके आऊंगा, मुझे खाली ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, तो STRU स्ट्रक्ट करके मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सारे के सारे एम्प्लॉय से आई मीन स्ट्रक्ट टेबल क्रिएट भी होगा, सारे के सारे डेटा भी कॉपी होगा. करेक्ट? यस और नो? Yes. ओके, सो मुझे ना ये डेटा को कॉपी नहीं करना है, ये डेटा को मुझे कॉपी नहीं करना है, खाली टेबल स्ट्रक्चर बना देना है. डेटा में और कहीं से और कोई जगह से जुगाड़ कर लूंगा या और कोई टेबल से ले लूंगा. मुझे खाली स्ट्रक्चर बना के दे दो, सो दैट मेरा काम अटक रहा है. ये स्ट्रक्चर बना के दोगे तो फिर मैं आगे जाके और कुछ काम करूंगा. सो इन दिस कमांड you will always be getting structure plus data, right? Yes or no? You will be creating a structure, then Yes, sir. your data will be copied. So now we have to write a condition which is a false condition. यहाँ पे अगर मैं condition, ये condition true हुआ तभी भुवनेश्वर का डेटा आ गया. मैं अगर यहाँ पे एक condition लिख दूं जो कि which will be false where the data will not be copied. So मैं लिख देता हूँ where e-address equals to ऐसा करके कुछ एड्रेस है क्या ओरिजिनल टेबल में? नहीं. नहीं है, राइट? तो ये कमांड क्या करेगा, पहले टेबल क्रिएट कर देगा स्ट्रक्ट टेबल, उसके बाद जब डेटा कॉपी करने की कोशिश करेगा उसको ये डेटा मिलेगा ही नहीं, तो डेटा कॉपी नहीं होगा, खाली टेबल ही क्रिएट हो जाएगा. zero rows affected. That means if you just select star from struct, okay, select star from struct. Now the table is created, but no data has been copied because you have written a false condition. In your data itself, in your address itself, you'll not find USA करके कुछ है, USA address कुछ mention है. Since it is not there, data has not been copied, data copy नहीं हुआ, but आपका table copy हो, table create हो गया, struct करके table create हो गया, but data is not copied. आपका काम हो गया. How to create an empty structure? Okay, how to create an empty structure from maybe an existing table, from an existing table, from existing table. ठीक है, okay, got it? Yes. Understood. ऐसा भी कर सकते हो, और एक इजी अप्रोच बता रहा हूँ. So guys, what this will do? Delete. Yep. Yes, कल रिमूव कर दबा database से database ना table. टेबल से टेबल. Table will be deleted. Okay, drop table command will permanently remove this struct table. Execute करो, फिर से select star from struct करो, invalid object name because you have removed that table from here. Okay, table आपने remove किया. Okay, so that is the reason why you are getting invalid object name struct. Clear? Yes. Okay. यस सर. So now और एक तरीके से डेटा कॉपी करेंगे, एम्प्टी डेटा कॉपी करेंगे. ठीक है, मतलब एम्प्टी डेटा आएगा, एम्प्टी आएगा, टेबल क्रिएट होगा, एम्प्टी हो जाएगा, स्ट्रक्चर एम्प्टी मिलेगा. वेयर
where मैं लिखूंगा 1 equals to 1, guys, this is true or false? 1 equals to True. true है, right? 1 equals to 1, that is true. Okay. Yeah. So if अगर मैं ऐसे करूंगा ना, देखो 8 rows affected, ये struct table फिर से create हो गया और पूरे डेटा के साथ, because you have just written something true. Okay. Select star into struct for from employee where 1 equals to 1. 1 equals to 1 मतलब true, तो फिर सब डेटा आ गया। मैं अगर ये फिर से इसको ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप किया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 equals to 0. What is this, true or false? False. 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 false तो इसको एग्जीक्यूट करो, टेबल क्रिएट हो जाएगा बट डेटा कॉपी नहीं होगा बिकॉज आपने लिखा वेयर फॉल्स। ओके, देखो ये भी एक दूसरा तरीका है। दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 2। ठीक है, यहाँ या तो आप एक फॉल्स कंडीशन लिख दो जो डेटा है ही नहीं टेबल में, नहीं तो आप सीधा क्योंकि आपको पता नहीं है ना क्या डेटा रहेगा क्या नहीं रहेगा, सीधा आप ये लिख दो 1 equals to 0। 1 equals to 0 means it is always false. It will create the table, it will not copy anything from the table. Struct table create होगा बट डेटा कॉपी नहीं होगा, that's it. 1 equals to 0. Okay, clear? Yes. हाँ सर। सबको क्लियर है? Whatever we have covered today, is it clear to everyone? Yes, sir. और किसी को कुछ डाउट है guys? yes sir So few of you guys are responding. Others, what about others? Yes, sir. Subhashri, Shubhadeep, Sandeep, Rajesh. Yes, sir, clear. आ रहा है समझ में, right? Yes, sir. Okay. So the next thing is, let's say मुझे क्या करना है अभी, there is one more interesting thing. See, now I have a table और एक, okay. sir Yes. sir ଆମକୁ PDF ମିଳିପାରିବ ଯୋଉରା ମାନେ ଏଇ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ଆମର PDF ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। Notepad I'm sharing. Okay. So can you ଆଜ୍ଞା। guys, can some of you please take the initiative and convert it in PDF? There is nothing, I mean, PDF can be, see, if it is in Notepad, then you can easily quickly open it and copy the notes from here. ଆଜ୍ଞା So ଠିକ ଅଛି I'll share every day this, there is no point if I'm not sharing. So every day I'll be sharing this code. Okay. So copying data from another table. Okay. So here the scenario is different. ये सिचुएशन क्या है कि आपके पास ऑलरेडी टेबल है, आपको डेटा कॉपी करना है दूसरे टेबल से। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हुआ, टेबल क्रिएट हुआ, डेटा कॉपी हुआ, राइट? यस और नो? टेबल क्रिएट हुआ, डेटा कॉपी हुआ, बट मेरे पास अभी एक टेबल है विच इज ब्लैंक, मुझे खाली डेटा कॉपी करना है। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया? Yes, yes. सो इन द प्रीवियस स्टेप्स ये जो सिलेक्ट स्टार इनटू वाला कमांड क्या करता है, टेबल को क्रिएट करता है, फिर दूसरे टेबल से सब डेटा कॉपी करके लेके आता है। वो स्ट्रक्चर भी इधर से कॉपी होता है और डेटा भी इधर से कॉपी होता है। बट नाउ इन दिस केस आई ऑलरेडी हैव ए टेबल which do not have any data. Okay, this table, the table doesn't have any data. I have to simply copy the data from another table. Got it? Yes. Okay, so what I'll do is, this is also a very simple command. Insert into, कौन से table में data insert करना है? Struct table. Select star from. Okay. Insert into struct. Select star from. Employee. ओके आप स्ट्रक्ट टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो बाय कॉपिंग डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, सो चलो देखो, एम्प्लॉय टेबल में तो डेटा है ही, 8 रोज अफेक्टेड। चलो स्ट्रक्ट टेबल में कुछ था नहीं, अभी देखो डेटा आ गया डेटा। स्ट्रक्ट टेबल में अभी कुछ नहीं था, हमने Yes. ओके हमने जस्ट टेबल क्रिएट कर दिया था फॉल्स कंडीशन यूज करके। सो टेबल क्रिएट हो गया बट डेटा हमने सेम टेबल से कॉपी कर लिया। बट यू हैव टू एंश्योर वन थिंग,
ओके, जब आप ये कमांड चला रहे हो, ओके, आपको इंश्योर करना है जहाँ से आप डेटा कॉपी कर रहे हो। ओके, लेट्स से आप जहाँ से डेटा कॉपी कर रहे हो, सपोज मैं एम्प्लॉय टेबल से डेटा कॉपी कर रहा हूँ स्टॉक टेबल में। ओके, तो चलो दोनों टेबल में लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ऊपर हो गया एम्प्लॉय टेबल, नीचे नीचे वाला हो गया स्टॉक टेबल। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये टेबल में डेटा कुछ नहीं था, राइट? यस और नो? स्टॉक टेबल हमने एम्प्लॉय टेबल से डेटा यहाँ पे डाला है लेके, करेक्ट? करेक्ट। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा, जब आप ये ऊपर वाला कमांड चलाओगे, जो कमांड हमने चला के देखा, इंसर्ट इनटू स्टॉक सिलेक्ट, हमने यहाँ पे लिखा था इंसर्ट इनटू स्ट्रक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल से डेटा लेके स्टॉक टेबल में डाल दो। बट बिफोर दैट यू हैव टू इंश्योर वन थिंग, अगर ये आप कमांड लिख रहे हो तो स्ट्रक्चर सेम टू सेम होना चाहिए, बराबर। अगर इसमें एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, ई एड्रेस, ई सैलरी है, ये जो सोर्स टेबल है, सपोज ये सोर्स टेबल है, ये टारगेट टेबल है जहाँ पे डेटा कॉपी हो, यहाँ पे कॉपी होके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो सोर्स टेबल में कॉलम नेम जैसा है, सीक्वेंस जैसा है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस रहना चाहिए, राइट? यस और नो? नहीं तो इधर से E102 आके इधर अगर रहेगा, तो अगर यहाँ पे डेटा टाइप बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाएगा। सपोज ई नेम, आपने ई नेम का वहाँ पे साइज रखा है 30। ओके, मतलब टारगेट में 30 है, ऊपर में 100 है, ठीक है? मतलब यहाँ पे सोचो ये 100 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 100 मतलब बड़ा नाम रख सकते हो। सपोज ज्योति कुमार चौधरी या ऐसे कुछ बहुत बड़ा नाम आपने रखा। बट जब ये ज्योति आके यहाँ पे कॉपी होगा, यहाँ पे अगर साइज 30 होगा, यहाँ पे वो फिट हो पाएगा क्या? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस। देखो आपके पास लेट्स से, ये तो चलो, सपोज ये टेबल में 4 कॉलम है, ठीक है? ये टेबल में 4 कॉलम है, ये टेबल में 3 कॉलम है। तो आप 4 डेटा कॉपी करके लेके आके अगर यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, ये कर पाओगे? पॉसिबल है? यहाँ पे 3 कॉलम है, सपोज ये कॉलम है नहीं, करेक्ट? यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट दिस 4 रिकॉर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर रो। पॉसिबल होगा? 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, व्हाट अबाउट द लास्ट वन? नहीं कर पाओगे। नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, चलो आपके पास लेट्स से 4 BHK है, 4 BHK फ्लैट है, 4 बेडरूम हॉल किचन है, ठीक है? आप अभी रेंट पे रह रहे हो, ठीक है? अभी आपने एक न्यू फ्लैट खरीदा, एक न्यू अपार्टमेंट में एक न्यू फ्लैट खरीदा विच इज अ 3 BHK फ्लैट। तो ये 4 BHK में सामान पूरा एकदम भरा हुआ है। आपने मूवर्स पैकर्स को बोल के यहाँ से सामान लेके इधर शिफ्ट करोगे, तो ये अगर 4 BHK घर में है, पूरा एकदम पैक है, यहाँ पे 3 BHK में फिट होगा क्या ये? No. नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये 4 BHK फ्लैट है, ये 3 BHK है, लेट्स से इफ अज्यूम दैट इट इज नॉट देयर, 3 BHK है। तो इधर से सामान आके अगर आप कोशिश करोगे इसमें इंसर्ट करने के लिए, नहीं होगा, बिकॉज 1 कॉलम इज मिसिंग। फिर और एक चीज भी इंश्योर करना पड़ेगा, लेट्स से 4 BHK में एक घर का साइज था, ओके, 12 x 11 फीट का जो है, ओके, ये घर का साइज है। बट यहाँ पे जो आपका मास्टर बेडरूम है 8 x 7 है, तो इधर से भी सामान आके इधर रख पाओगे क्या? इतना बड़ा घर से सामान लेके छोटे घर में रख पाओगे? ना। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉय नेम का, सपोज ये जो टेबल क्रिएट हुआ है, आपने क्रिएट टेबल करते वक्त ई नेम यहाँ पे मेंशन क्या है? ई नेम इज वेर केयर ऑफ 300, ओके। बट ये जो टेबल, सपोज आपने एक अलग टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे ई नेम ऑफ 50 है, तो 300 कैरेक्टर में आपने आप क्या कर सकते हो? बहुत बड़ा नाम से स्टोर कर सकते हो। वो जब बड़ा नाम आएगा, सपोज किसी का नाम है
जैसे चौधरी शेखर हरिचंदन करके कुछ एक बहुत बड़ा नाम है, लेट्स से इट इज, इसका फॉर एग्जांपल इसका इसका जो लेंथ है लेट्स से 300 कैरेक्टर्स का लेंथ है फॉर एग्जांपल। तो इतना बड़ा नाम अगर यहाँ पे ई नेम कैरेक्टर ऑफ 30 ई नेम ऑफ 30 वैर कर लिया हुआ है, ये कॉलम में आएगा क्या, इंसर्ट हो पाएगा? नो नहीं। सर। तो सेम एग्जांपल, 12 into 11 का घर है, साइज है बेडरूम का साइज। नाउ द 3 BHK फ्लैट परचेस्ड, तो इसका जो मास्टर बेडरूम का साइज है लेट्स से 12 हो गया या 12 into 10 हो गया, तो फिट ही नहीं होगा। तो इसीलिए दो चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। ओके, columns, the number of columns should match, and the data type, and its size should also match. Correct? Yes or no? Okay. The number of columns should match, and the data type or the data type and its size should also match. Correct? This is point 1. This is, I can write point 2. Data type and its size should also match. Correct? Okay. So ऐसा for example आपको आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि let's assume that this column is not at all, this column is not present. Don't worry, let me remove this. I'll explain you this remove part. Alter command हमने पढ़ा नहीं है. So alter table struct draw column, ये हमने पढ़ा नहीं है, हम लोग कवर करेंगे, बट जस्ट मैं दिखाता हूँ. डोंट वरी अबाउट दिस कमांड. ओके, select star from struct, select star from struct. Okay, truncate table struct. truncate table struct क्यों यूज होता है, क्यों हम लोग ये कमांड यूज कर रहे हैं? truncate table क्या करेगा? सारा डेटा डिलीट कर। सारा डेटा रिलेट कर देगा. ओके, सो नाउ यू हैव, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, देखो ये टेबल में आपका जो सोर्स टेबल जहां से डेटा कॉपी होगा, इट हैज 4 कॉलम्स, बट जहां पे आप कॉपी को इंसर्ट करोगे इट हैज 3 कॉलम्स, राइट? ओके, तो ये कमांड अभी चलाओ. आया समझ में? द कॉलम नेम, क्योंकि डेटा, देखो डेटा एम्प्लॉय से आ रहा है, उसमें ये इसमें 4 कॉलम है, बट स्ट्रक्ट में आप देखोगे तो 3 कॉलम है. सो इसीलिए बोल रहे हैं कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डजंट मैच टेबल डेफिनेशन. क्लियर? 4 BHK क्लियर। सामान आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 3 BHK है, तो यू आर नॉट एबल टू insert records. Understood the difference? Okay, so column name or number of supplied values doesn't match table definition. Correct? तो मैं एक काम करता हूँ, और इसका एक ऑल्टरनेटिव है. So instead of specifying star, okay, instead of specifying star, what I can do is, मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, तो यहाँ से 4 कॉलम से डेटा आ रहा है. सो व्हाई कांट आई राइट दिस 3 कॉलम्स? मेरे पास EID है स्ट्रक्ट में, ओके, उसके बाद मेरे पास ई नेम है, ओके, उसके बाद ई एड्रेस है, राइट? ई एड्रेस. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप एम्प्लॉय से डेटा लेके स्ट्रक्ट में भरोगे, ओके, स्ट्रक्ट ब्लैंक है, स्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट हैज 3 कॉलम्स, सो यहाँ से 3 रूम से सामान लेके आओ, चौथा रूम से सामान लेके मत आओ. ठीक है? सो एम्प्लॉय आईडी से लेके आओ, एम्प्लॉय नेम से लेके आओ, एम्प्लॉय एड्रेस से लेके आओ, इग्नोर करो एम्प्लॉय सैलरी को. तो अभी देखो इंसर्ट हो गया, राइट? सो चेक इट. आ गया डेटा? क्लियर? तो मैंने जब यहाँ से कॉपी किया डेटा सोर्स टेबल से, मैंने जब सोर्स टेबल से डेटा कॉपी किया, ओके, आई हैव ओनली कॉपीड डेटा फ्रॉम
I have populated, I mean listed these three columns. In the column list, I have mentioned these three columns: employee ID, e-name, e-address. ये तीनों कॉलम से डेटा लेके स्ट्रक्ट टेबल में डाल दो. सो सिक्वेंशियली ये e-id में डाल दिया, e-name में डाल दिया, e-address में डाल दिया. अगर मैं स्टार लिखता है एरर थ्रो करता, बिकॉज स्टार मीन्स ऑल कॉलम से डेटा लेके यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करो. सो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 4 कॉलम नहीं है. यहाँ पे सोर्स टेबल में 4 कॉलम है, बट डेस्टिनेशन टेबल में, टारगेट टेबल में 4 कॉलम नहीं है. सो क्लियर? सर इसमें एक क्वेरी है. इसमें आप बोल रहे हैं कि कॉपिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल. अगर हम ऑलरेडी एक डेटा फाइल है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम दूसरे फाइल से न्यू डेटा ऐड करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं ना? अच्छा, कॉपी कर सकते, यही सिस्टम है. ठीक है, सेम सिस्टम. देखो फिर से ये इसको मैं अगर फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, इसको 2 बार एग्जीक्यूट करता हूँ. चलो अभी देखो, डुप्लीकेट डेटा आ जाएगा, डुप्लीकेट. अच्छा जी. नीचे ऐड हो जाएगा. सो ये इसमें आप इंसर्ट ही करोगे, इंसर्ट करोगे जितना बार एग्जीक्यूट करोगे. मतलब मेरे सपोज आप समझो कि एग्जांपल क्या हो सकता है. बट यहाँ पे एड्रेस में क्यों आ रहा है? हम्म एड्रेस में सैलरी आ रहा है टेबल में. ये एड्रेस में सैलरी आ रहा दोस्तों हमने गलत एंट्री हम लोग का वैसे हो गया. है. शायद गलत. गलत है. बट डेटा एंट्री हमने गलत किया होगा. हाँ, वो नल एंट्री करते टाइम एक हाँ गलत हुआ direct- शायद. ये अगर गलत किया होगा तो आ जाएगा. जी जी ठीक है. ओके, देखो अभी क्या है ना, सपोज आपका एक मास्टर टेबल है. ठीक है, मास्टर टेबल है. इसमें ना सब डेटा को आपको कॉपी करना है. सो आपका सपोज आपका कंपनी जो है, तो आप पूरा ऑल ओवर लेट्स से इंडिया में आपका 10 ब्रांचेस. ओके, 10 ब्रांचेस में ट्रांजैक्शन टेबल्स है. ठीक है, सपोज ये भुवनेश्वर का है, ये चेन्नई का है, ये हैदराबाद का है, ये मुंबई का है. ठीक है, ये लेट्स से बैंगलोर. ओके, देन पुणे, नासिक, ये सब 10 ट्रांजैक्शन टेबल्स है. आपका जो मास्टर टेबल है ना, सबका सेम स्ट्रक्चर है. यहाँ आप क्या करोगे, ये आपका मास्टर टेबल हो गया. ठीक है, मास्टर टेबल जब होगा, ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज ओके, आप यहाँ से स्ट्रक्चर तो सबका सेम होगा. यहाँ पे एक बार डेटा आने के बाद ये डेटा को एनालाइज करके डैशबोर्ड बना सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो. क्या हुआ, डेली सेल्स का क्या हुआ, वीकली सेल्स का क्या हुआ, मंथली सेल्स का क्या हुआ, व्हाटएवर. बट आपको पहले डेटा सबसे कॉपी करना पड़ेगा कि नहीं, ट्रांजैक्शन टेबल से. और डेफिनेटली सबका सबका जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है. ये भुवनेश्वर है, ये पुणे है, ये जो भी है. बट आपका टेबल जैसे कि आप एक कंपनी हो